I'm Mr. Brown, the sports officer of St. Raphael School. I'm here with my team. My team is Kamini, Mr. Sapnil Yadav, and Mr. Bhavishya. हेलो एवरीवन। जो बेसिक स्किल्स हम आज करने वाले हैं लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कराटे एंड खो खो, इसके पहले हमें कुछ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है बिकॉज सिटिंग पोजीशन में हैं आप दिन भर, घर पे इतना वॉक नहीं है, इतना वॉकिंग नहीं है। तो किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले, किसी भी इवेंट को करने से पहले आपको अपने जॉइंट्स को ओपन करना पड़ेगा और रिलैक्स करना पड़ेगा, जिससे आपको मसल्स इंजरी नहीं हो। तो आज आपको मैं बहुत स्लाइट सी एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आपके शोल्डर, वेस्ट और आपके पैरों का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा और खेलने की पोजीशन में हम रेडी रहेंगे। पहले तो हम स्ट्रेच करेंगे। हैंड्स को स्ट्रेच करना है बिकॉज हमें वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलते वक्त हाथों की ज़रूरत होगी। एल्बो शुड बी स्ट्रेट। इसी को अप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे पैरों को, हिल्स अप एंड डाउन। इसी को आप तीनों डायरेक्शन में करेंगे। सेकंड, आपको अपने एक हाथ को पकड़ के दूसरे डायरेक्शन में खींचना है। सेम हैंड चेंज। ये मैंने शोल्डर का बताया आपको। आपको अपने शोल्डर्स को इजी लाइट वेट करना है। सेकंड, बैंडिंग, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। इसी को आप दूसरी पोजीशन में कर सकते हैं कि आपको खेलते वक्त कोई इंजरी नहीं हो। तीसरा है आपके लेग्स। पूरा काम हम हमारे पैरों से करेंगे बिकॉज फुटबॉल में भी फुटवर्क यूज होता है, बास्केटबॉल में भी एंड वॉलीबॉल में भी। इसको स्ट्रेच करना है, मसल्स को रिलैक्स करना, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन आपका मसल्स का हो जाएगा। तो आज हमारा ये स्लाइड सा एक्सरसाइज है, इसको रिपीटेशन में आपको करना है अकॉर्डिंग योर टाइम। जितना भी आपके पास टाइम है थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स कर लें। देन वी स्टार्ट बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड कराटे। Today, I'll be teaching you the volleyball game. In volleyball, the very important thing which you have to learn is the underhand pass. And in the underhand pass, there are two things which you have to take care. One is the platform, the other one is the base. Now, what are these two things? I'll be explaining to you. Okay, so thing which we have to learn today, the first thing is the platform. Now, what is a platform in underhand pass? It is your hands, where the ball has to be played from. The first thing which you have to do is you got to bring your thumbs together, both your wrists together, and the elbows together, opening up. Before that, you have to put both your fingers, your hand, this is resting on the other hand, bringing your thumbs together, your wrist together, and the elbow together, forming a firm platform for the ball to be played, where the ball has to be struck from. What you have to do in underhand pass, the first thing, I want you to take your hands out, both the thumbs together. Now both these thumbs together, keeping it very straight, bring the wrist together and bring both the elbows together, which is the platform. Now this is the platform which is forming a triangle. The ball has to be played from here. Before that, open up your hand, bring your fingers together, keep it on the other hand, bring the thumbs together, wrist together, elbows together. Now this is a triangle form which is known as the platform where the ball has to be played. And the ball has to be played from this part of the hand where you touch your watch away from the watch. Keeping the elbow straight, keeping the wrist straight, keeping it strong and firm. This is where you play the ball from. Okay. The second part is the base. Now what you have to do in the base, that is your footwork. What you have to do is one leg a little forward, the other leg a little back. Open up your legs, bend your knees with both your hands in the front,
keeping the hip part which is out and curving the back. The back has to be curved with the hips going back. Now the hands in the front. As the ball is received, coming from the service side over there, both these foot is pointed towards the ball where the ball is coming from. Now we do this for some reason. Why I'm bending this back and when I'm bending this knee is to have space between the hand and the leg, so we can get a full motion to play the ball across the net. This is the advantage which we have. The hand should not be held up. It should be down, ready to receive the ball which is coming across the net from there. I am going to explain you with the ball. Now how the ball has to be placed on the platform where you'll be striking the ball to the opponent's court. I want you just put your hands out, position, hands together, take a position, underhand position. Now what you have to do is, when the ball comes from the opponent court, you have to receive the ball from this part of the hand. Okay, now the receiving part has to be a little lower so you can get the power coming forward. We'll do it again. The ball comes here, you got to move forward, pushing the ball, keeping the elbow straight. You do it again once more, just check in all of you. Position, the ball comes in, play, push, keeping the elbow straight and keeping the hands to this level. This is how you're going to play the ball across the net, which is known as the underhand pass in volleyball. I'm Kamini Savan, sports teacher of St. Triples. I'm taking a basketball, and today we learn how to hold the ball. It's a basic thing of basketball. बॉल को फेमिलियर बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे की चीज़ों को कर पाएंगे. आज हम सीखेंगे हाउ टू होल्ड द बॉल. बॉल को आप किस तरह से होल्ड करेंगे. जो बेसिक है, सबसे पहले बॉल को आपको फेमिलियर बनाना है. इसके लिए जो है हमारा स्टांस क्या होगा और होल्डिंग क्या होगी. फर्स्ट हम सीखेंगे स्टांस. आपको किस पोजीशन में खड़ा होना है और क्या कंफर्टेबल पोजीशन होती है. जब हम बास्केटबॉल स्टार्ट करते हैं और मूवमेंट में करेंगे हम, तो हम हमारे शोल्डर, जो आपका शोल्डर है, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, योर शोल्डर, जो आपका शोल्डर लेवल है उसी हिसाब से आपके पैर ओपन रहेंगे. पैरों की जो पोजीशन होगी वो शोल्डर के अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग योर शोल्डर लेवल. बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पास रखना है. ये शोल्डर लेवल है, कंफर्टेबल पोजीशन है. अब हम क्या करेंगे, लिटिल बिट बैंड आपको करना है अपने नीज को, कंफर्टेबल पोजीशन. इसमें मैं रनिंग कर सकती हूँ, इसमें मैं वॉकिंग कर सकती हूँ. स्ट्रेट पोजीशन में आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे. हम बॉल के साथ करेंगे. ये होल्डिंग है, इट्स अ होल्डिंग. बॉल की होल्डिंग जो है वो इस टाइप से है. इसे हमें क्या करना है, मूवमेंट में करना है. ये मूवमेंट है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. इसी के वेरिएशन है टॉप टू बॉटम. मैंने नेक पे किया, वेस्ट होता है, नी एंड एंकल की पोजीशन बॉल की कहीं पे भी आ सकती है. तब आप उसको किस तरह से होल्ड करेंगे. फर्स्ट मूवमेंट, हम नेक के अराउंड बॉल को मूवमेंट के साथ चलाएंगे, राइट टू लेफ्ट एंड आफ्टर लेफ्ट टू राइट. अब हम लेफ्ट टू राइट करेंगे. सेकेंड पार्ट हम करेंगे वेस्ट रोटेशन. वेस्ट रोटेशन मतलब कमर के पीछे से बॉल को आपको आगे लेकर आना है और आगे से पीछे लेकर जाना है. थर्ड वन, हम नी रोटेट करेंगे. नी के यहाँ से बॉल को रोटेशन करना है. इसके लिए आपको अपने पैरों को ज्वाइंट करना पड़ेगा कि आपके जो नीज हैं वो एक दूसरे के पास आ जाए.
फोर्थ वन, एंकल रोटेशन। बॉल को आपके एंकल के वहां से पूरी तरह से रोटेट करना है। सेम पोजीशन रहेगी जो नी बैंड किया था, आपके जो दोनों पैर हैं वो एक दूसरे के पास रहेंगे। आई एम महेश कटारिया, कराटे कोच ऑफ सेंटर बेसिक स्कूल। मैं आपको कराटे के बेसिक स्किल्स बताऊंगा, बेसिक पंचेस, किक्स, ब्लॉक्स, ये सब आज को मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। कराटे स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। तो सबसे पहले वो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट होने के लिए एक पोजीशन होती है योई। योई कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। योई में आपको आपके जो लेग है और हैंड है वो बिल्कुल शोल्डर लेवल पे रहेंगे। योई करने का तरीका है हैंड क्रॉस करके देन सामने आप, ठीक है। योई मतलब अटेंशन और बी अलर्ट, ठीक है। नाउन लेग जॉइन करेंगे हैंड साइड में, मैं ओस करूँगा। ओस रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं सामने वाले को, और विश करने के लिए कहते हैं अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को, अपने कलीग्स को रिस्पेक्ट देने के लिए ओस कहते हैं। हैंड साइड में लेग जॉइन ले। नाउ सेम योय। मैं आपको बेसिक पंच सिखाऊंगा। कराटे के जो बेसिक पंच है जैसे स्टमक पंच, फेस पंच एंड डाउन पंच। लेफ्ट हैंड आउट, लेफ्ट हैंड साइड में देन आउट। आप ओजुकी स्टमक पंच करेंगे। पंच का नाम है ओजुकी, जो स्टमक पे अटैक होता है। बिल्कुल स्लो देखेंगे, बिल्कुल स्लो, ओके। इसमें आपकी जो नकल से आगे की वो अटैक होगी, बिल्कुल सामने। ओंकार सबसे अंत में, सबसे आखिरी में आप ओंकार की ध्वनि से अपनी जो भी स्किल्स की है उसे आप समापन करेंगे। साथ ही साथ ओंकार आपके रिलैक्सेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इवन जब भी आप सुबह की शुरुआत करें या किसी भी क्लास की स्टार्टिंग में आप 3 बार ओंकार बोलिए, आपके माइंड का जितना भी स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो सही टेक्निक है वो सही टेक्निक ओंकार करने की मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। चाहें तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर चाहें तो आप इस तरह से पद्मासन की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। ये पद्मासन की पोजीशन बैठ गए, आपके दोनों हाथ आपके नीज के ऊपर रहेंगे इस तरीके से। आपका बैक स्ट्रेट रहेगा और हेड की पोजीशन सीधी रहेगी। आपकी आंखें कोमलता के साथ बंद होंगी। आपको ब्रीथ इन करना है 1 में और 2 में ब्रीथ को आउट करते हुए ओंकार बोलना है। देखिए किस तरीके से। 1 ब्रीथ इन से ओम, 2 अगेन ब्रीथ इन से ओम, आखिरी बार ब्रीथ इन से ओम, Now rub your palms together, keep them on your eyes. One more time, rub your palms together, keep them on your eyes. Bring down your hand and very slowly open your eyes. इस तरीके से आप आपके मन को, मस्तिष्क को स्ट्रेस से, किसी भी तनाव से दूर रख सकते हैं।